Hello everyone. In this lecture we will study about the 8086 microprocessor. Till now, that is in the previous lectures we were discussing about 8085 microprocessor. We discussed about the pin description of 8085 microprocessor, the architecture of 8085 microprocessor, the function of each and every pins of the 8085 microprocessor, and how the 8085 microprocessor functions we also discussed. And then in the next uh, unit we studied about the assembly language programming and instructions related to the 8085 microprocessor. We studied different group of instructions related to the 8085 microprocessor, such as data transfer instructions, arithmetic instructions, logical instructions, branching instructions, and machine control instructions. So we studied all about the 8085 microprocessor till now. Now we are going to discuss about the 8086 microprocessor. So the Intel 8086 microprocessor, it is the first 16-bit microprocessor, and it was released by Intel in 1978, and it was fabricated using HMOS technology, means high density MOS technology. It is a 16-bit microprocessor. And if we talk about the address lines, it is having 20 number of address lines, and these 20 number of address lines are time multiplexed with other lines. So the low order 16 address lines are time multiplexed with the data lines, and it means that A0 to A15, we can say AD0 to D15 lines are time multiplexed with the data lines, and A16 to A19 जो lines हैं that are time multiplexed with the status signals. What is the meaning of time multiplexed? We also discussed this time multiplexed signals in 8085. It means that the lines which are time multiplexed, that will serve one purpose at a particular time, and the different purpose at the different time. Okay, so the 8085 has 20 address lines that are time multiplexed, and it can access maximum memory of 1 megabyte. 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो मैक्सिमम मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं वो 1 मेगाबाइट की. कैसे? क्योंकि इसमें 20 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं, तो 20 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, और हमें मैक्सिमम मेमोरी को साइज पता करनी है, तो वी कैन यूज द रिलेशन small capital N equal to 2 to the power small n, where capital N is the number of memory locations and small n is the number of address lines. So it will be equal to 2 to the power 20, and 2 to the power 20 can be written as 2 to the power 10 into 2 to the power 10, that will be equal to 1k and 1k, and it will be equal to 1 mega locations, that is 1 megabyte. 2 to the power 20 is equal to 1 mega locations, that is 1 megabyte, since one memory location is of 1 byte. So if the memory maximum memory that can be accessed is the 1 megabyte, and the address range of the memory will be from 0000h to FFFFH. ठीक है, और जो 1 मेगाबाइट की मेमोरी है उसको 16 अलग अलग लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है.
ये जो 1 मेगाबाइट की मेमोरी है इसको 16 डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक सेगमेंट 64 किलोबाइट का होता है. इट हैज 16 नंबर ऑफ डेटा लाइंस. तो 16 डेटा लाइंस हैं इसकी. इसका मतलब वर्ड लेंथ कितना हुआ 16. एंड since one memory location is generally of 1 byte, and if we want to store a 16-bit word in the memory, then how it will be stored? It will be stored in 2 consecutive memory locations. Since one memory location can store 1 byte, so 16-bit word can be stored in the 2 consecutive memory locations. ठीक है. The 20 address lines are time multiplexed lines. We already discussed. And the low order 16 address lines, the 16 low order address lines will be time multiplexed with the data bus, since it has 16 data lines. So we can say the low order 16 address lines are time multiplexed with the data bus. It can be represented as AD0 to AD15, and the remaining 4 lines are time multiplexed with the status signals, that is 16 to 19. These lines are time multiplexed with the status signals. ठीक है. तो अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम कंपैरिजन करें 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज द फर्स्ट 8-bit प्रोसेसर रिलीज बाय इंटेल. तो 8085 बिट जो हमने स्टडी किया था वो कितने बिट का प्रोसेसर था? 8 बिट का प्रोसेसर था. इसमें कितने एड्रेस लाइंस थी? 16 एड्रेस लाइंस होती हैं 8085 में. और 16 एड्रेस लाइंस हैं तो मैक्सिमम मेमोरी कितना एक्सेस कर सकता है? 64 किलोबाइट. कैसे हमने कैलकुलेट किया था? 2 to the power 16 से, दैट विल बी इक्वल टू द 64 किलोबाइट. ठीक है. और डेटा लाइंस कितनी होती हैं 8085 में? तो 8 नंबर ऑफ डेटा लाइंस होती हैं. तो 8085 का जो वर्ड लेंथ है वो 8 बिट के या 1 बाइट के इक्वल है. और उसमें जो 16 एड्रेस लाइंस होती हैं वो भी उन टाइम मल्टीप्लेक्स सारी तो नहीं होती हैं, बट लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस आर टाइम मल्टीप्लेक्स्ड विद द डेटा लाइंस. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट्स आर क्लॉक की बात करें, क्लॉक फ्रीक्वेंसी की, तो 8086 रिक्वायर्स 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी. और ये 2 मोड्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. 8086 माइक्रोप्रोसेसर कैन operate in 2 different modes, and the name of 2 different modes are the minimum mode and the maximum mode. और 8086 की एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसका मेन फीचर है, वो ये है कि it can fetch up to 6 instruction bytes from memory and queues them. This will speed up the instruction execution. ये 6 इंस्ट्रक्शंस बाइट्स को फेच कर सकता है और उन्हें क्यू में रख सकता है. इससे क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है वो फास्टर होगा. 8085 में क्या था? 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैन फेच 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, बट 8086 माइक्रो प्रोसेसर हैज दिस फीचर दैट इट कैन फेचेस अप टू 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स from memory and queues them, and this will speed up the instruction execution. तो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ 8086. तो यहाँ पर 8086 आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम शोन है. इस 8086 के आर्किटेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज BIU, that is bus interface unit, and the second part is known as EU.
that is execution unit. Okay, the architecture can be divided into two blocks. The first block is BIU, bus interface unit, and the second block is EU or execution unit. तो ये जो बस इंटरफेस यूनिट है, इसमें कौन कौन से क्या क्या चीज़ें, ये कौन कौन से ब्लॉक्स को कंसिडर करता है? तो बस इंटरफेस यूनिट जो है वो सेगमेंट रजिस्टर्स को कंसिस्ट करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को कंसिस्ट करता है, एड्रेस समर को कंसिस्ट करता है, इट also includes the address summer, and it also includes the instruction queue and the bus control logic. तो BIU कौन कौन से ब्लॉक्स को कंसिस्ट करता है? BIU consists of the segment registers, the instruction pointer, the address summer, the instruction queue and the bus control logic. तो यहाँ पर जो एड्रेस समर है या ये जो डेडिकेटेड एडर है, इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज है 20 बिट फिजिकल एड्रेस को जनरेट करना, जिसका आउटपुट एड्रेस बस को जाता है. इट्स पर्पज इज टू जनरेट the purpose of this dedicated adder is to generate the 20 bit physical address and it will be output on the address bus. Okay, कैसे जनरेट करता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अभी हम लोग इसके आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और किस ब्लॉक का क्या फंक्शन है. तो बस इंटरफेस यूनिट जो है, इसमें सेगमेंट रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एड्रेस समर, इंस्ट्रक्शन क्यू और कंट्रोल लॉजिक, ये चीज़ें होती हैं इसमें. तो भी इन ब्लॉक्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो बस इंटरफेस यूनिट है वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है. तो बस इंटरफेस यूनिट क्या करता है? इसका पहला फंक्शन, इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन, इट कैन फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी और इट कैन रीड द डेटा फ्रॉम मेमोरी. तो पहला फंक्शन इसका ये हो गया, इंस्ट्रक्शन को फेच करने का या डेटा को रीड करने का. दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है, इट कैन राइट द डेटा इनटू मेमोरी. डेटा को अगर मेमोरी में राइट करना है तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया. थर्ड फंक्शन इज टू रीड द डेटा फ्रॉम द इनपुट पोर्ट, टू रीड द डेटा फ्रॉम द IO पोर्ट. द फोर्थ फंक्शन इज टू राइट द डेटा ऑन द पोर्ट. ठीक है, और इसका जो स्पेशल फीचर है एक 8086 का, जो कि बस इंटरफेस यूनिट में ही इंक्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू. सो दिस बस इंटरफेस यूनिट सपोर्ट्स द सिस्टम क्यूइंग. इट सपोर्ट्स द इंस्ट्रक्शन क्यूइंग. इट सपोर्ट्स द इंस्ट्रक्शन क्यूइंग. मतलब ये सपोज कि अभी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये अहेड ऑफ द टाइम इट कैन स्टोर द इंस्ट्रक्शन of codes, or it can fetch the instruction up to 6 bytes. तो ये 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को फेच कर सकता है ahead of the time. एंड ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जिन रजिस्टर्स में स्टोर्ड होते हैं उनको बोलते हैं, ये जो यहाँ पर शोन है 1 2 3 4 5 6, तो इन रजिस्टर्स को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू. ठीक है, तो इसके फायदा क्या है? इट विल स्पीड अप द एग्जीक्यूशन टाइम. इट विल स्पीड अप द एग्जीक्यूशन टाइम. कम लगेगा इसमें एग्जीक्यूशन में अगर हम 8085 से कंपेयर करें तो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बस इंटरफेस यूनिट. द सेकेंड ब्लॉक इज EU, दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट. तो इसमें कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ द रजिस्टर्स. इट कंसिस्ट ऑफ द रजिस्टर सेट ऑफ 8086 एक्सेप्ट द सेगमेंट रजिस्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. तो ये इसके रजिस्टर सेट हो गए. यहाँ पर मेंशन है जो AHAL, BHBL, CHCL एंड DHDL
SP, BP, SI एंड DI। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर के सेट हो गए 8086 के, जो कि एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज रजिस्टर सेट्स, it also includes the ALU segment, that is arithmetic and logical unit, and it also includes status and control flags. Okay, ठीक है, and Q control logic। और ये जो AH, AL, BH, BL, CH, CL और DH, DL हैं, ये 8 जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में कौन कौन सी ब्लॉक्स आए? डिफरेंट रजिस्टर्स जो हैं ये, जिसमें जनरल पर्पज रजिस्टर्स, टेम्पोररी रजिस्टर्स, ये सारे रजिस्टर्स इंक्लूड हैं। और ALU सेक्शन, क्यू कंट्रोल लॉजिक, और जो फ्लैग्स हैं वो वाला सेक्शन। तो इट EU इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज सेक्शंस। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं कि जो एग्जीक्यूशन यूनिट है वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो BIU का काम है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करना। तो एग्जीक्यूशन यूनिट BIU को ये बताएगा कि कौन से लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। सो द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट इज टू टेल द बस इंटरफेस यूनिट from where to fetch the instructions, or from where to read the data, और from और कहाँ पर डेटा को राइट करना है। तो ये सारे बातें एग्जीक्यूशन यूनिट बस इंटरफेस यूनिट को इन्फॉर्म करता है। the next function of execution unit is to decode the instructions, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, जिसको BIU ने फेच किया है उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। और द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूशन यूनिट इज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट के सारे फंक्शंस हो गए। और ये जो दोनों यूनिट्स हैं, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट, 8085 की ये दोनों यूनिट्स सिंक्रोनसली ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब कि जब बस इंटरफेस यूनिट जो है वो फेच कर रहा है, तो सिंक्रोनसली जो एग्जीक्यूशन यूनिट है इट आल्सो कैन डिकोड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, मींस कि एक ही टाइम पे जो फेच का BIU जो फेच करने का काम कर रहा है और EU जो डिकोड और एग्जीक्यूट काम करने का काम कर रहा है, ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग है बस इंटरफेस यूनिट की और एग्जीक्यूशन यूनिट की, तो इसमें जो 8085 में क्या होता था कि पहले फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो 8085 में कोई पैरेलल प्रोसेसिंग थी नहीं, पहले फेच देन डिकोड देन एग्जीक्यूट। तो इसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा लगा। अब यहाँ पर 8086 में ये फैसिलिटी है कि फैसिलिटी ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो जब फेच और डिकोड करने का काम अगर एक टाइम पर हो रहा है, तो इससे जो फेच में एडिशनल टाइम जो लगेगा वो टाइम से कम लगेगा 8085 के कंपैरिजन में। ठीक है। तो इसका जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का। तो इससे जो सिस्टम बस है उसका भी इफिशिएंट यूज होगा और जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी सुधरेगी। इट विल result in the efficient use of the system bus, and it will also result in the improved system performance। okay? तो इस टाइप का जो ओवरलैप्ड ऑपरेशन है कि जब जिस टाइम पर एग्जीक्यूशन यूनिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम पर BIU यूनिट इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को फेच कर रहा है, तो इस टाइप का जो ओवरलैप्ड ऑपरेशन है जो दो अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स का, इसको एक टर्म बोलते हैं पाइपलाइनिंग। दिस इज कॉल्ड एज पाइपलाइनिंग। ओके। The architecture can be divided into two blocks: bus interface unit and execution unit. And as we discussed, the bus interface unit
handles all transactions of data and address on the buses for the EU. जो डेटा का जो ट्रांजैक्शन है या जो इंस्ट्रक्शन को फेच करने का प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता है? बस इंटरफेस यूनिट हैंडल करता है. The BIU performs all the bus operations such as instruction fetching, reading and writing operands from memory, and calculating the addresses of the memory operands. That is to calculate the 20-bit physical address which can be implemented using this address summer. It is also one of the function of the bus interface unit. The instruction bytes are transferred to the instruction queue. तो जो ये फैसिलिटी है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद बस इंटरफेस यूनिट उसे इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर कर सकता है. फिर जब 8085 जो करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा तो फिर वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है जो क्यू में रखा गया है. तो इट कैन स्टोर अप टू 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स. The execution unit executes instructions from the instruction system byte queue. यहाँ पर जो क्यू करके BIU ने 6 बाइट्स को रखा, एग्जीक्यूशन यूनिट जो है उसको 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. The BIU contains instruction queue, segment registers, instruction pointer and address adder. इंस्ट्रक्शन क्यू हो गया जिसमें 6 बाइट्स को स्टोर करके रख सकता है. सेगमेंट रजिस्टर्स हो गए डिफरेंट. आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से सेगमेंट रजिस्टर्स हैं. यहाँ पर मेंशन किया गया है फिगर में, देख सकते हैं. सेगमेंट रजिस्टर्स आर नेम्ड एज ES, CS, SS and DS, which will be studied in the next lecture in detail, and also the function of these registers. Instruction pointer and address adder. और एग्जीक्यूशन यूनिट कौन कौन से ब्लॉक्स को कंसिडर करता है? द एग्जीक्यूशन यूनिट कंटेन्स कंट्रोल सर्किटरी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पॉइंटर, इंडेक्स रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर. तो एग्जीक्यूशन यूनिट कौन कौन सी सेक्शंस को कंसिस्ट करता है? कंट्रोल सर्किटरी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पॉइंटर, इंडेक्स रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर. यहाँ पर हमने 8086 के आर्किटेक्चर को समझा. अच्छा, अगर हमने 8085 के आर्किटेक्चर को भी पढ़ा है, अगर उन दोनों को एक बार कंपेयर करें तो जो 8085 का हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें कौन कौन सी यूनिट्स थी? उसमें ALU सेक्शन था. एक आर्किटेक्चर को जब हमने डिवाइड किया था डिफरेंट सेक्शन में, तो एक सेक्शन ALU का था, दूसरा सेक्शन जो था टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का, तीसरा जो था रजिस्टर एरे का. इसके अलावा उसमें इंटरप्ट से रिलेटेड सेक्शन था और सीरियल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सेक्शन था और एक बसेस से रिलेटेड सेक्शन. ठीक है. तो 8085 में जैसे ALU में कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट कर रही थी? जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट, एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर. रजिस्टर एरे की बात करें अगर 8085 की, तो उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स थे? 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो 8 बिट के थे, BC, DE और HL. और इसके अलावा 16 बिट के रजिस्टर्स जो कि स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर. ठीक है. टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जो भी टाइमिंग एंड कंट्रोल जो यूनिट है उससे रिक्वायर्ड सिग्नल जैसे X1, X2 जो कि क्लॉक पल्स के लिए है, और इसके अलावा जो रीसेट के सिग्नल्स थे और DMA कंट्रोलर से रिलेटेड जो सिग्नल्स थे. ठीक है. तो इस तरह के जो सिग्नल्स, क्लॉक से रिलेटेड जो सिग्नल्स X1, X2 और क्लॉक आउट, तो और इसके अलावा कंट्रोल सिग्नल्स जैसे रीड, राइट और स्टेटस सिग्नल्स, तो ये सारे टाइमिंग एंड कंट्रोल में इंक्लूड हो रहे थे 8085 में.
रजिस्टर एरे की बात की हमने, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की बात की, एलयू की बात की, इंटरप्ट रिलेटेड सिग्नल्स थे, 5 इंटरप्ट के पिंस थे जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए, ट्रैप RST 6.5, RST 7.5, RST 5.5 एंड INTR, और एक इंटरप्ट से रिलेटेड पिन जो कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए। इसके अलावा सीरियल IO, सीरियल इनपुट आउटपुट, अगर डेटा ट्रांसमिशन सीरियली करना है तो उसके लिए 2 पिंस थे, SID और SOD। ठीक है, तो 8085 के आर्किटेक्चर को हमने स्टडी किया था। तो 8085 के आर्किटेक्चर में, और अगर हम 8086 के आर्किटेक्चर में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि 8085 में जो प्रोसेसिंग है किसी भी इंस्ट्रक्शन को, वो 3 पार्ट्स में मेनली होती है। पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करना, फिर उसको डिकोड करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं वो 1 by 1 होते हैं। First, the instruction will be fetched, that is it will be accessed from the memory into the 8085 microprocessor. Then it will be decoded with the help of one more section was there in 8085, that is instruction register and decoder. So it will be decoded by the decoder and then it will be executed. तो 8085 में जो पाइपलाइनिंग जैसा कोई टर्म नहीं था, वहाँ कोई पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी। पहले इंस्ट्रक्शन फेच हो रहा था, फिर डिकोड हो रहा था, फिर एग्जीक्यूट हो रहा था। जबकि 8086 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर पाइपलाइनिंग मैकेनिज्म है कि अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसी टाइम पर वो किसी दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाइट को फेच भी कर सकता है। और कितने मैक्सिमम बाइट्स को फेच कर सकता है? 6 बाइट्स को। और उनको कहाँ पर स्टोर करेगा? इंस्ट्रक्शन जो उसके लिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, यहाँ पर ये जो रजिस्टर्स हैं उसमें स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8086 में पाइपलाइनिंग एक इसका फीचर है that will speed up the execution of the instruction. So let us discuss about the bus interface unit in detail. तो bus interface unit जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं? तो bus interface unit consists of 6 byte instruction queue. It is mentioned here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it contains 6 byte instruction queue. The segment registers are mentioned here as ES, CS, SS and DS. And ES stands for extra segment, CS stands for code segment, SS stands for stack segment and DS stands for data segments. So there are 4 segment registers which is included in the bus interface unit: code segment, data segment, stack segment and extra segment registers. Okay, these segment registers have different functions. These are used to for the storage purpose of different functions, and it will be uh, explained in the next lecture what is the function of these segment registers. So it contains 6 byte instruction queue, segment registers, the instruction pointer and the address summing block. This is the address summing block. This is all about bus interface unit. This is the block diagram of bus interface unit. तो यहाँ पर अगर हम queue की बात करें, what is queue? It is used to implement a pipeline architecture. The bus interface unit uses a mechanism known as instruction stream queue. तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्यू जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर पाइपलाइन आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है। और इसको किसकी वजह से होता है? यहाँ पर क्यू का यूज़ किया गया है। तो इट सपोर्ट्स द pipeline architecture. This queue permits prefetch of
up to 6 bytes of instruction code. Whenever the queue of BIU bus interface unit is not full, it has room for at least 2 more bytes, and at the same time the execution unit is not requesting it to read or write operands from memory. The bus interface unit is free to look ahead in the program by prefetching the next sequential instruction. तो क्यू क्या करता है, क्यू अगर एक टाइम पर अगर एग्जीक्यूशन यूनिट किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसी टाइम पर बस इंटरफेस यूनिट प्री फेच कर सकता है नेक्स्ट 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को. ठीक है, ओके. सो इस लेक्चर में हमने पढ़ा 8086 आर्किटेक्चर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में, और 8086 का जो आर्किटेक्चर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 2 सेक्शंस जो हैं इसकी कौन कौन से ब्लॉक्स को कंसिस्ट करते हैं, और हमने ये भी समझा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं 8085 और 8086 के आर्किटेक्चर में. तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि अभी हमने क्यू के बारे में पढ़ा बस इंटरफेस यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में, और एड्रेस समिंग ब्लॉक के बारे में कि इन सेक्शंस का क्या फंक्शन होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.